براہ راست لے چلیں گے فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ بریفنگ کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہوا. آج سب سے جو امپورٹنٹ ڈیسیژن میں بھی میڈیا کے لیے ہو جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ای سی ایل کے جو 172 نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے, جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ 2015 میں یہ اسکینڈل شروع ہوا تھا جس میں سندھ کے جو بہت حکومت سے وابستہ شخصیات ہیں ان کا نام ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور جو ان کی بہن ہے آصف زرداری صاحب کی فریال تادپور, وہ مرکزی کردار ہے اس اسکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا تھا, اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا, پاکستان کے عوام کے اوپر حقوق کے اوپر ڈالا گیا. اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ 2015 سے یہ شروع ہوئی, 2018 میں جا کر کے یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی. 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے. آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کے 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں, وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انٹیریئر کی جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے. لا منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا, اور جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے. لیکن فی الحال چونکہ کوئی اس کا تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق پھر عمل کریں گے جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے. ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہوں گے, شہریار آفریدی ہوں گے, شہزاد اکبر صاحب ہوں گے, اور اس کے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. یہ جو تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی, دیکھے گی, رول دیکھے گی کہ کس کے کیا ہے, اور اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی. اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی پھر کابینہ بھی گائیڈنس لے گی کہ کیا اس فیصلے کی نظر ثانی میں جانا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ بہرحال جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے. کابینہ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھیں اس کے اوپر اس کا جو نتائج ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. دسمبر 2018 سے لے کر اب تک بینکوں سے پرائیویٹ سیکٹر میں 504 ارب روپے ایڈوانسز دیے گئے. اسی عرصے میں پچھلے سال یہ شرح 305 ارب روپے تھے, یعنی یہ ایڈوانسز 21% کی شرح سے بڑھے, جو 13 سالوں میں سب سے بڑی گروتھ ہے ایڈوانسز میں. اسٹاک ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی 59% بڑی ہے, اور یہ 2012 سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی گروتھ ہے اس سیکٹر میں. ایک اور جو بہت خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شروع سے حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو ترجیح دیں گے, اور ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ ہماری ایک جو اکنامک پالیسی ہے اس کا ایک بہت اہم سمجھیے کہ جز تھا. تو دسمبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, اور اس کے ساتھ امپورٹس میں 8.5% کمی آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ 19% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے, اور صرف ایک مہینے میں $540 ملین کی کمی آئی ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں, جو ظاہر ہے کہ بہت ایک اہم ہمارے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے ہماری معیشت کے لیے. وزیر اعظم نے حکم دیا ہے
वजारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका आप वफाकी हुकूमत तय करे कि वो किन किन नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं और किन किन नौकरियों के लिए नहीं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हुक्म दिया है वजारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर नेगेटिव कैटेगरी लिस्ट जो है वो पेश की जाए। कोशिश हमारी यही होगी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दोहरी शरीयत के जो हामिल लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लिहाजा हम उनके लिए पाकिस्तान के अंदर जो काम करने के मौके हैं उनको वसीतर करना चाहते हैं। लिहाजा एक लिस्ट आ जाए जिसका पता हो कि इस लिस्ट में जो नौकरियां शामिल हैं वो ओवरसीज नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम वो नौकरियां वो कर सकते हैं। चूंकि वज़ीर-ए-आज़म का खुद भी बहुत दिल धड़कता है ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल को लेके, उनकी बात को लेके, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि फौरी तौर के ऊपर ये मामला जो है इसको किसी कंक्लूजन पे लेके जाना जरूरी है ताकि हम इस पे आगे बढ़ सकें। गैस की शॉर्टेजेस का जैसे मामला आपने देखा, हमने उसको डील किया। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह हिदायत की है कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी गैस की लेके आप अवाम के सामने आए। 28% लोग हमारे जो सिस्टम गैस यूज करते हैं, जिसको हम आम जुबान में सुई गैस कहते हैं, वो सिस्टम गैस पाइपों से आती है, लोगों के घरों में लगती है, वो सिर्फ पाकिस्तान की पूरी आबादी का 28% है और बाकी जो 63% लोग हैं वो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो बहुत फिर आगे हमारे जैसे इलाकों के लोग हैं, हमारे यहाँ तो लकड़ियां जलाई जाती हैं या फिर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मुल्क की जो बहुत बड़ी अक्सरियत है वो गैस से महरूम है। तो और ये जो 28% लोगों को जो हम सिस्टम गैस दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। अब एक वक्त था जबकि हमारे यहाँ गैस के जखीरे बहुत बड़े थे तो ये बहुत सस्ती थी, लेकिन अब हमें बहुत महंगी पड़ रही है। और माशाल्लाह ये गैस का सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछली हुकूमत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो खुद को गैस का आइंस्टाइन ही समझते हैं, वो जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली थी तो गैस के ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था। जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के वो गए और अब 48 अरब रुपया या 50 अरब रुपया हर साल गैस के सेक्टर में जो है वो अब हमें चोरी का सामना है। माशाल्लाह जिस चीज के ऊपर हाथ रखा है पीएमएलएन के वुज़रा ने, वो तो सारी नुकसान में ही गई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस किया और कहा है कि कम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटजी जो है वो हमारे सामने पेश की जाए। मीडिया में कल ये बात आई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बिजली का बिल है वो 15 लाख रुपया आया था। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो गैस जो बिजली का बिल था तकरीबन 88 से 95,000 यूनिट्स बिजली प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस्तेमाल होती थी। अब ये 44,000 यूनिट इस्तेमाल हुई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो खुद वहां रह ही नहीं रहे और वज़ीर-ए-आज़म का कोई सेटअप ही वहां नहीं है, तो भी इतना ज्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने अपने ही जो स्टाफ है उसके ऑडिट का भी हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो मैनेज कर रहा है स्टाफ और जो मामलात हैं उसको ऑडिट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी जाए कि ये बिजली का बिल जो वहां पर आया है वो इतना ज्यादा क्यों आया है। जो बाकी एजेंडा है उसकी तरफ भी मैं आपको एक नजर जो है आपकी तरफ ले चलता हूं। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब को एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीआईए का जो है वो लगाया गया है, एडिशनल चार्ज होगा उनका। इश्तिहार दे दिया गया है वैसे मुस्तकिल एमडी के लिए, तो जो ही वो आ जाएगा तो ये उस सौदे से हट जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके पहले जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक वो एडिशनल चार्ज के लिए काम करेंगे।
शाह रुख साहब हैं सेक्रेटरी एविएशन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का। जो टबैको का पाकि बोर्ड है उसका 2 हफ्ते उसमें एक्सटेंशन की गई है। नेशनल टैरिफ कमीशन की मेंबर जो हैं वो अंजुम असद अमीन को जो है वो मुकर्रर किया गया है नेशनल टैरिफ कमीशन की मेंबर। इसके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को की रियर एडमिरल अतर सलीम साहब को जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो जो मंजूरी है वो दी गई है। साले मोहम्मद फारूकी साहब को एडिशनल ये सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। इनके पास एडिशनल चार्ज कराची डेवलपमेंट कंपनी का भी होगा, क्योंकि कराची में हमने जो वफाकी हुकूमत है हमने फैसला किया है कि कराची को हमने फोकस करना है अपनी डेवलपमेंट का, क्योंकि वहां के लोगों ने तहरीके इंसाफ को मैंडेट दिया है। और पहले ये हो रहा है कि पैसे वहां पे जाते हैं जो कि वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन और लंदन के वाया पेरिस और पता नहीं कहां चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए जरूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहां पे खर्च करती। लिहाजा इंशाल्लाह वो बराह रास्त खत्म भी किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि यूएई के साथ एक बहुत बड़ा डिसलिनिएशन प्लांट जो है वो उसके मंजूरी हो चुकी है और इंशाल्लाह कराची के लोगों का जो पीने का पानी का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। इसके साथ आयशा अजीज को मैनेजिंग डायरेक्टर पाक बुरनाय इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। इस्लामाबाद सीडीए के चेयरमैन के लिए इम्पोर्टेंट था, इसके लिए आमिर साहब जो चीफ कमिश्नर हैं इस वक्त उनको सीडीए के चेयरमैन की एडिशनल जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। लेकिन इसको अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह हुक्म दिया है कि सीडीए का चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से लिया जाए। लिहाजा उसके लिए जो कानूनी तरीकाकार है एडवर्टाइजमेंट है वो दी जाएगी और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर से उनको जो है वो एक प्रोफेशनल जो है उसको सीडीए का चेयरमैन लगाया जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम आमिर अली अहमद जो है वो एडिशनल जिम्मेदारियां ये जो है ये पूरी करेंगे। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो फैसले किए थे 1/1/2019 को उनको जो है वो उसको अप्रूव किया गया है। घारो सोलर प्राइवेट लिमिटेड का जो रेफरेंस था उनका टैरिफ जनरेशन था उसकी जो है वो अप्रूवल दी गई है। और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो आज कैबिनेट ने किया था और जो मिनिस्टर शुमारियात हमारे साथ खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो तशरीफ रखे हैं, उनके सेक्रेटरी शुमारियात भी हमारे साथ हैं। तो हम देख रहे थे कि महंगाई के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि महंगाई हो गई है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो काबीना को आज एक पूरी प्रेजेंटेशन दी मिनिस्टर साहब ने भी और सेक्रेटरी साहिबा ने भी, जिसमें बताया गया कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत है क्या। तो मैं ये चाहूंगा मिनिस्टर साहब कि उसको आप ही लीड करें और हमें बताएं कि उसमें क्या मामला है।